So it's question number 76, DKG. It says from the following balance sheet of Godrej Limited, you are required to prepare cash flow statement. Shareholder funds आपको दिया हुआ है, share capital opening balance 3 lakh, closing is 330, reserves and surplus 30,000 and 25,000. मिल गया? Then long term borrowings में 40,000, 25,000. Current liabilities में we have short term borrowings, opening balance is nil, closing 5,000. Trade payables 124 and 97, and short term provision 24 and 30. Then we have tangible assets, intangible assets, inventory, trade receivable, cash and cash equivalents. और उसके बाद notes to accounts में आपको composition मिलेगा, and then we have additional information. So first and foremost, draw a 1.5 sides format of cash flow statement. फिर हम इसके concerned T accounts बनाएंगे पहले, और उसके बाद हम CFS बनाना start करेंगे. तो ये एक बड़ा question है, where you are supposed to gather all the information first, then put it in cash flow statement. Second type of small questions आपको मिलेंगे जिसमें डेटा आपको ऑलरेडी दिया होगा, आपको सिर्फ पुट करना है. ओके, बी क्विक. चलो, तो कौन कौन सा टी अकाउंट बनाना है पहले ये चेक कर लेते हैं. चलो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप टी अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का. रिजर्व्स एंड सरप्लस का टी बनाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस ही प्रॉफिट है बेसिकली. देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टी बनाएंगे आप. ट्रेड पेबल्स का टी बनता नहीं है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड इसका नोट देख लेते हैं किसका है. ओके, बैंक ओडी एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल, पेटेंट. तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए, एंड 5 एंड 6 यहाँ पे हो गए. देन एक बनेगा चिल्ड्रन टैंजिबल असेट्स का टी अकाउंट. तो हाउ मेनी टी अकाउंट्स आर नीडेड? 7. सो 5 लाइंस के 7 टी अकाउंट्स हम बनाने स्टार्ट करेंगे. रेडी एवरीबॉडी? पक्का? चलिए 7 टी अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं वेरी क्विकली. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील ड्रॉ द टी अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल चिल्ड्रन. Then we have the T account for long-term borrowings. Thereafter, बनाएंगे T account for tangible assets. Then we'll draw a T account for bank overdraft. Then we have a T account for tax provision. And T doesn't mean कि सिर्फ T का शेप होगा. अमाउंट कॉलम भी जरा ड्रॉ कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा. Then we have for goodwill, and then we have for patents. So 1 2 3 4 and 3 7. Drop T accounts very quickly, children. Yes, sir. So first and foremost, children, in share capital account, we'll be putting opening balance where? Credit side. So we make it by balance brought down. What's the value of opening balance? 3 lakhs. And where we'll be putting the closing balance? Leaving approximately 2 debit side. To balance carried down 3,30,000. So share capital का कोई adjustment तो है नहीं, इसको यहीं पे fill करके complete करते हैं. Which side sounds short, children? By what? Credit side. 30,000. Credit side. 30,000. So it means we have increase in share capital. It could have multiple reasons. We could have issued shares for cash. We could have issued shares to vendors, underwriters, promoters, bonus share, कुछ भी हो सकता है. But in the absence of any information, the instruction is आपने shares को cash में ही issue किया है. So we'll put by bank, and below that you can write issue financing activities में plus करेंगे. तो यहीं से आप so called सब्जी खरीद के ले जा रहे हैं घर में बनाने के लिए, और आपका घर कहाँ है? Cash flow statement. Then children, we have long term borrowings. Again, opening balance will be written how? Credit side. Credit side. By balance. By balance brought down. Brought down. How much? 40,000. 40,000.
Then how we'll put the closing balance, children? To balance To carried balance down. carried down. Very good. To balance carried down. How much? 25,000. Which side do you find that the shortage exists, children? Debit side. Debit side. Debit side. Very good. कितनी shortage है children debit side में? 15,000. 15,000. Excellent answer. तो 15,000 रुपये आप किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट में. Debit side. Definitely children, if debit is short, आपने repay किया होगा. So we'll be putting what? To bank. It is repayment. To bank account. In financing activity, we'll subtract. Understood this? Children, understood this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then आगे चलते हैं. So called towards bank overdraft, children. Which side we will be putting the opening balance? Credit side. Credit side. By Debit side. balance brought down. Do we have any value? No, sir. No, sir. Dash. Opening balance would be written where, children? What? Debit side. To balance To carried balance down. carried down. How much? 5,000. 5,000. And which side is short, children? Credit. Credit side. side. How much? 5,000. 5,000. What to write? By PL? By bank, yes. So every account has its own identity. So we have borrowed money in financing activities. We'll add this up. समझ गए सब लोग? चलिए. Then children, tax account. Where we'll put the opening balance? By Credit side. balance brought Debit down. side. How much? 24,000. 24,000. And where we'll put the closing balance? Debit side. Debit To side. balance To carried down. balance carried 30,000. down. To balance carried down. Very good. How much? 30,000. 30,000. Very good. Check out children in adjustments. First adjustment है मशीनरी का. Second is depreciation on machinery. First मतलब मशीनरी की सेल थी. Then non current investments का adjustment है 20 के investments को 32 में बेचा, वो तो ही बना नहीं रहे हम. And interest paid on long term borrowings. Do we have any adjustment with respect to tax provision? बिल्कुल नहीं No, है. sir. टैक्स प्रोविजन No, का कोई sir. एडजस्टमेंट नहीं है चिल्ड्रन. तो टैक्स प्रोविजन का कोई भी एडजस्टमेंट आपके पास नहीं है. सो चिल्ड्रन डिफरेंस कितना आ रहा है टैक्स के अकाउंट में? 6,000. क्रेडिट में लिख के 6,000. कर दें? नो, इट हैज बीन No, टोल्ड sir. कि टैक्स में हम डिफरेंस की अकाउंटिंग नहीं करते. ओपनिंग बैलेंस विल बी अज्यूम्ड एज पेड. सो वी विल राइट टू बैंक एंड क्लोजिंग एज प्रोविजन मेड. तो क्या लिखेंगे? बाय पीएल. टैक्स इकलौता ऐसा अकाउंट है जिसमें मिनिमम आपको 4 पोस्टिंग्स करनी ही करनी है. Here we never account for the difference. Then children, goodwill. How to write the opening balance? To To balance balance carried down. brought down, not carried down. And closing is what, children? By balance carried. But coincidentally closing value आपको कुछ भी नहीं दी है, तो we'll put a dash. Which side is short? Credit side. Right side. Credit side. That. So children, अब यहाँ पे एक contradiction है कि सर ये शॉर्टेज क्रेडिट पे 50 की लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा. बट इसे क्या अज्यूम करें? सेल अज्यूम करें कि राइट ऑफ अज्यूम करें? व्हाट इट क्लियर? नहीं, ऐसा नहीं है. बोर्ड एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आपको हिंट नजर आ रही है. पेटेंट्स आर अज्यूम टू बी रिटन ऑफ. बैंक ओडी इज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सर बैंक ओडी तो पता है हमको फाइनेंसिंग होता है, क्यों लिखा हिंट में? पुराने जमाने में बैंक ओडी फाइनेंसिंग नहीं होता था. ये AS3 रिवीजन में चेंज आया था 5-6 साल पहले, तब इसको फाइनेंसिंग माना गया था. और उसका रीजन है फाइनेंसिंग मानने का. एट ऑल टाइम्स आपने बैंक से बोरो किया हुआ है पैसा. गॉट इट क्लियर? तो पहले इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट लायबिलिटी माना जाता था. हम भी इसको करंट लायबिलिटी मानते हैं, बट रियलिटी में बिजनेसमैन ऑलवेज नीड मनी फ्रॉम बैंक. तो हमेशा उधार उनके ऊपर लगा ही रहता है, तो वो कभी पे बैक एक्चुअली में होता नहीं है. पे किया थोड़े दिन के लिए, फिर जरूरत पड़ी, फिर चेक काट के पैसा ले लिया, फिर पे किया, फिर ले लिया, तो वो उधार परमानेंटली आपके ऊपर रहता है. दैट्स व्हाई हमने इसको लॉन्ग टर्म का नाम दे दिया कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव में. ओके, तो पेटेंट के लिए तो यहाँ पे हिंट में भी लिखा हुआ है, बट एग्जाम में थोड़ा लिख के आएगा आपके पास हिंट. तो पेटेंट में हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, पहले AS6 होता था, AS10 हो गया है. इट अज्यूम्स कि असेट में अगर साइलेंट रिडक्शन है तो हमको प्राइमरली उसे डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन मानना है, हमें उसे सेल नहीं मानना. तो भाई ये तो पेटेंट में मैंने आपको बताया हुआ है. बट गुडविल पूरी की पूरी खत्म हो गई, एक साथ इतना कैसे डेप्रिशिएट हो सकता है? तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज सेल एंड नॉट
एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। तो सेल के लिए, गुडविल के लिए क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय बैक। Buy bank account. एंड सेल है तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। समझ में आ गया? पेटेंट चिल्ड्रन, ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट? वेरी गुड। एंड व्हाट्स द क्लोजिंग बैलेंस? हाउ मच? 7500. Which side is short? Credit So side. this reduction is treated as amortization. So we'll be putting by PL amortization. यहाँ पे बच्चों अगर by PL लिखा है तो PL में क्या लिखेंगे हम? 2 patents. तो patents की वैल्यू कम हो रही है, patents की वैल्यू, तो PL में आपने लिखा 2 patents. Operating profit must have gone down and resulted into net profit. वापस net profit से ऊपर आने के लिए क्या करेंगे आप? Add back. समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving back to the account of नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी एक बनेगा, एड ऑन कर लीजिए चिल्ड्रन इसको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी एक अकाउंट बनेगा, मिस हो गया, ड्रॉप फास्ट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस वुड बी रिटन वेयर? डेबिट साइड। हाउ विल बी पुटिंग इट? टू बैलेंस Brought down. What is the value? 50,000. And closing balance on the credit side, how much? 64,000. Very good. लिख दिया सबने? Next. अब Yes, इसका sir. एडजस्टमेंट था बच्चों। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 20 के थे जो आपने 32 में बेच दिए, तो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। व्हाट इज द सेल वैल्यू ऑफ एसेट? मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द सेल वैल्यू ऑफ एसेट? 32। एंड व्हाट वाज इट्स कॉस्ट? चलिए, तो प्रॉफिट 12 का हो रहा है। जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट इज व्हाट चिल्ड्रन? बैंक Bank to asset. So you will be putting by bank. How much? 32. And how much profit do you see? 12. This profit in asset account would appear where? Credit side. Debit side. Why credit side? PL में credit side में होता है भाई। ये PL अकाउंट थोड़ा बन रहा है, ये तो asset account है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में भूल गए थे क्या? भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम, मैंने ठीक आपको नोट दिया हुआ है, उसको पढ़िए। So debit side is 62 children and credit side is 96. Which side is short? By what? Debit side. 62 है यहाँ पे और 96 होना चाहिए 34। डेबिट पे शॉर्टेज 3 बातें रिवील करती है, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट ऑन सेल एंड परचेज। दो ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? वेरी गुड। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट चिल्ड्रन? एसेट टू बैंक, सो वी विल बी पुटिंग टू बैंक। ये जो 2 PL है ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा बच्चों, और 2 बैंक इज परचेज बेसिकली इन्वेस्टिंग में माइनस, एंड बाय बैंक इज सेल, ये क्या होगा इन्वेस्टिंग में? एड। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो चिल्ड्रन, डेबिट साइड में जो भी मिसिंग डेटा आता है वो कौन सा मैथमेटिकल सिंबल लेके चल रहा है? माइनस। और क्रेडिट साइड में प्लस। चेक करिए, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी ऐसा ही हो रहा था, एंड बैंक ओडी में भी ऐसा ही हो रहा है, एंड टैक्स में सो कॉल्ड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस। टैक्स में भी ऐसा ही हो रहा है चिल्ड्रन, गुडविल में भी ऐसा ही हुआ और पेटेंट भी ऐसा हुआ। समझ में आ गया? समझ में आया? तो ये चीज आपने पता नहीं ऑब्जर्व की हो कि ना की हो, तो ये एक बहुत बड़ा क्रॉस चेक है गलती अवॉइड करने का, कि क्रेडिट वाला डेटा जो भी यहाँ से असरटेन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो माइनस आइडेंटिटी लेके ही चलेगा, और डेबिट वाला डेटा प्लस आइडेंटिटी, किसी भी अकाउंट में हो, चाहे एसेट का हो चाहे लायबिलिटी का हो। और दो ही चीजें मिसिंग फिगर में आपको जनरली मिलती हैं, या तो बैंक मिलेगा या तो पीएल मिलेगा। पीएल वाला जो डेटा होगा, ये बातें बहुत ध्यान से याद रखिएगा, पीएल वाला जो डेटा होगा वो ऑपरेटिंग में ही खेलता रहेगा, और जो बैंक वाला असेट से रिलेटेड होगा वो इन्वेस्टिंग और लायबिलिटी से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग। 4 लाइन की बात है पूरे चैप्टर की। गॉट इट?
चलिए अब टैंजिबल असेट पे चलते हैं, ये क्योंकि थोड़ा अलग है। ओपनिंग बैलेंस विल बी रिटन वेयर एंड हाउ विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स 2 लाख, और क्रेडिट में 4-5 लाइन छोड़ के लिखेंगे आप बाय बैलेंस carried down 2,60,000, करेक्ट। देन एडजस्टमेंट सेज मशीनरी जिसकी वैल्यू 50,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32। चलन क्वेश्चन में क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया था? नो, तो उसका लेजर बनाने No, की जरूरत नहीं है, ये टाइप 1 चल रहा है। उसका दिया होता तो उसका भी लेजर बना लेते। ओके, सो 18 इसकी बुक वैल्यू है एंड वी आर सेलिंग इट एट व्हाट प्राइस? तो वी हैव अ लॉस ऑफ हाउ मच? 8,000. ऐसे छोटे छोटे वर्किंग नोट्स आपने बहुत बनाए थे क्लास 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर में। चले आगे। सो चिल्ड्रन, सेल वैल्यू इज 10,000। व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट? Bank to asset. सो वी विल बी पुटिंग बाय बैंक। कितने में बेची थी एसेट? 10। 10,000 हाउ डू वी पुट लॉस चिल्ड्रन? बाय पीएल और टू पीएल? बाय Buy PL account. पीएल। हाउ मच? 8,000। 8,000. 8,000 ना समझ में आ गया? पिक्चर अभी बाकी है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 25,000 का। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू asset? Depreciation to asset. So we'll put what children? By depreciation कितना था? 35,000 था? 25,000. So credit total sounds to be what children? It's 18 plus 25, 43 plus 260, 3,03,000. And debit is what children? 2 lakh. Which side is short? Debit side. By what? 1 lakh. So debit side we have 3 possibilities. Opening balance could be there, profit on sale could be there, purchase. Profit on sale हो नहीं सकता because loss already आ चुका है। एक ही चीज हो सकती है, opening balance is already given, this can't be that। हो ना हो ये क्या होगा? क्या लिख दूं? To bank. So this is purchase, asset से related है तो investing activity, पैसा जा रहा है तो minus. These two would be added under operating activities क्योंकि उन्होंने profit को गिरा दिया था जब ये PL में डेबिट हुए थे। This is sale children, investing activity में क्या करेंगे? प्लस। तो ये क्लियर हो गया साइन मैनेजमेंट। तो क्रेडिट में कभी भी माइनस का साइन नहीं हो सकता और डेबिट में कभी भी प्लस का साइन नहीं हो सकता। जो भी मिसिंग डेटा मिलेगा वो हमेशा डेबिट में माइनस ही कॉरेस्पॉन्ड करेगा, चाहे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कुछ भी हो, और क्रेडिट में हमेशा प्लस। इन बातों को याद रखना है, घर जाके लिख लीजिएगा। जो घर में वो तुरंत लिख भी सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? तो मार्केट गए थे, सब्जी खरीद लाए। सर झोला कहाँ है? झोला, ये जो टी का शेप बना था ये झोला था बेसिकली, और इसके अंदर जो मैंने अपने कोमल हाथों को कष्ट देते हुए लिखा, दैट वाज सो कॉल्ड सब्जी, और जो डिजिट्स लिखे हैं ये सब्जी काटी गई थी। अब कढ़ाई में तेल वेल गरम है, सौटे कर चुके हैं, प्याज भून चुके हैं, अब सब्जी ऐड करते हैं। सर खाएगा कौन? टीचर जो चेक करेगा एग्जाम में इसको। तो आप एक कुक हैं, क्रुक मत बनिएगा। तो रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबॉडी? Yes, sir. आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया हुआ था शायद, आंसर चिल्ड्रन? चलिए उसी फॉर्मेट में सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन लिखना स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीबॉडी? चलिए सबसे पहले लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर चिल्ड्रन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Thereafter what we write? Net profit before tax and extraordinary items. मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप शॉर्टकट मत यूज करिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हाट वी राइट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मेरा नाम मत लिखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिख दिया। वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन करते हैं चिल्ड्रन।
रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिफरेंस आपको 25 एंड 30 -5 नजर आ रहा है चलन, 30 से 25 हो गया, बेचारा गिर गया, तो दिस इज नेट प्रॉफिट विद इन ब्रैकेट्स, और यू कैन राइट नेट लॉस ऑल्सो, एक ही बात है। डॉक्टर टी को याद करिए चिल्ड्रन, डॉक्टर टी कौन है? डॉक्टर टी डिविडेंड पेड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स। डिविडेंड पेड है नहीं पूरे क्वेश्चन में, ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं था, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स था। टैक्स में देखिए आपको बाय पीएल कितना नजर आ रहा है? 30,000। 30,000. तो 30,000 प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर लीजिए, तो फाइनली आपका आंसर एनपी, बीटी एंड ईओआई कितना बनेगा चिल्ड्रन? 25,000 प्लस। 25,000. आप अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टीचर्स सजेस्ट कि आप इसे बाहर ही लिखिए। चिल्ड्रन डिटेल कॉलम में से लिख लीजिएगा, समझ गए? अब क्या लिखेंगे आप? एडजस्टमेंट्स फॉर डीएलडब्ल्यू और ड्रिप याद है ना? तो डेप्रीसिएशन जैसा कुछ था हमारे पास? हाँ सर था डेप्रीसिएशन, हाउ मच? 25,000। और सो कॉल्ड लॉस जैसा भी कुछ था? डेप्रीसिएशन हाउ मच? 25,000। 25,000. We had children loss on sale of asset also how much? 8,000। और भी कहीं देख लो लॉस था क्या? यहाँ पे तो था नहीं। और चिल्ड्रन वो पेटेंट रिटर्न ऑफ था? हाँ चलिए, तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, पहले आप लॉस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन चिल्ड्रन लॉस ऑन sale of tangible assets, what was the loss? 8,000। done। अब बच्चे भूलना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम इज दिस, तो इसीलिए कह रहा हूँ टिक जरूर लगाइएगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हम लॉस कंसिडर कर चुके हैं चिल्ड्रन, डेप्रीसिएशन भी हो चुका है, इंटरेस्ट चिल्ड्रन पे किया है हमने, तो ये भी राइट ऑफ किया होगा पीएल में आपने। How much? 3,000। So write interest on long-term borrowings, कितना है ये? 3,000। डन, ठीक। तो डीएलडब्ल्यू के आइटम्स हो गए शायद, डेप्रीसिएशन हो गया, लॉस, इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ, ये भी हो गया। अब ड्रिप, डिविडेंड रिसीव जैसा कुछ है नहीं पूरे क्वेश्चन में, कितनी बार पढ़ चुके हैं नजर नहीं आ रहा। रेंट रिसीव्ड भी कुछ नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी कुछ नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट था चिल्ड्रन। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ अपने टी देखने हैं बस, टी में पीएल देखना है जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करें। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना था? 12,000। एडजस्टमेंट में एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं और कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट ऑन सेल है, तो वील बी पुटिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कितना था? 12,000। That's it. That's it चलो। So इस 25 को आपने डिटेल में जो लिखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई, इसके नीचे लाइन ड्रॉ करके इसको अमाउंट में ले जाइए। सो चिल्ड्रन यहाँ पे 25,000 एंड 2,500, 27,500, फिर 8,000 का लॉस, 35,500, 3,000 का इंटरेस्ट, 38,500 में 12,500 माइनस कर दीजिए, 26,500, ये आएगा 51,500। क्या बोलेंगे इसे आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये जो आइटम्स मैंने आपको लिखवाया एडजस्टमेंट फॉर के नीचे, जब छोटा क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा आपको, तो वो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। वहां पे तो बच्चे ने तोते की तरह रट लिया और सो कॉल्ड आ गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है चिल्ड्रन। डन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट, अब आपको चेंज इन CACL एडजस्ट करना है, पहले लिखना पड़ेगा बच्चों, फिर लिखेंगे। इसके अंदर CL में सिर्फ ट्रेड पेबल्स है, 124 से 97 हो रहा है, ये कम हो रहा है चिल्ड्रन, क्या करेंगे? माइनस
और इन्वेंट्री चिल्ड्रन भी कम हो रही है, क्या करेंगे? प्लस। प्लस। देख लें, ट्रेड रिसीवेबल 130 से 98 हो रहा है, इसे भी क्या करेंगे? प्लस। तो दो चीजें प्लस में है और एक माइनस में। तो पहले ऐड वाली स्टोरी अप्लाई कर लेते हैं। ऐड में क्या क्या था? डिक्रीज इन इन्वेंट्री एंड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री का डिक्रीज है 7,500 और ट्रेड रिसीवेबल का 32,000। और लेस में एक चीज थी बच्चों हमारे पास, दैट इज डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल एक 24 से 97 हो गया, तो 27,000 रुपए ये हो गया। सो 39,500 प्लस में है और 27 माइनस में है, तो 12,500 प्लस में हो गया। तो इट इज 0 0 0 2 3 1 4 5 and 1 6 64,000 children will be called as cash generated from operating activities before tax paid। अब आप लेस क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेड। टैक्स अकाउंट में बच्चों 2 बैंक आपको नजर आ रहा होगा, 24,000 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गॉट इट? तो 24,000 रुपए आप लेस कर देंगे, बट कुछ छूट गया हमसे, बिकॉज हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? 40 और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 90। 50,000 रुपए का डिफरेंस है। अब ये क्या छूटा है मैं आपको बताऊं, क्या छूटा है? गुडविल रिटर्न ऑफ। मैंने बोला था आपसे सो कॉल ध्यान से देखिए, बट हमारा कुछ भी नहीं छूटा है, परेशान मत होइए। मैंने आपको बोला था कि इतना गुडविल डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, आपको बहुत क्वेश्चन में मिलेगा। बोर्ड इसके ऊपर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो अगर ये 50,000 रुपए गुडविल की जो हमने सेल वैल्यू मानी है, अगर हमने इसको राइट ऑफ मान लिया होता तो हमारा आंसर ये 90 आ जाता। अब हमारा आंसर यहाँ पे 90 की बजाय 40 आ रहा है। गॉट इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे गुडविल को डेप्रिशिएट अमोर्टाइजेशन ना मान के क्या माना है? सेल। लॉजिक समझ में आ गया? अगर इससे हमने अमोर्टाइजेशन माना होता तो दिस वुड हैव बीन 90,000। तो अगर आप इसे अमोर्टाइजेशन मानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड गुडविल amortized instead of 25 this would become 75, this instead of 26 would become 76 और ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा चिल्ड्रन, और ये कितना बन जाएगा? 101,500 and accordingly values would change। तो ये 101,500 में 12,500 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? ऐड करिए, 1,14,000 और 25 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो आपने गुडविल का अकाउंट बनाया है वहां पे बाय बैंक की जगह यू वुड सर्टेनली नाउ बी पुटिंग बाय पीएल, इट इज रिटर्न ऑफ। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये आपको बहुत बुक्स में ऐसे एरर्स मिलेंगे और ये एक्चुअली एरर ही है क्योंकि इतनी गुडविल थोड़ा डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट भी खोल के देखेंगे, आपको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, 100% डेप्रिसिएशन सिर्फ आपको कंज्यूमेबल्स में मिलता है। जैसे रेस्टोरेंट में या लाइब्रेरी में रखी हुई मैगजीन, वो 100% राइट ऑफ होती है, बट बाकी सारी एसेट्स तो लॉन्ग टर्म चलती है। समझ में आ गया? एंड अबव ऑल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, बिजनेस बंद तो नहीं हो रहा है तो गुडविल जीरो कैसे हो सकती है? और अगर गुडविल का अमोर्टाइजेशन है तो हिंट में लिखा क्यों नहीं गया है? तो ये आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा भी नजर आ जाएगा कि भाई गुडविल की यहाँ सेल मान लीजिए आप। गॉट इट? तो ऑथर ने अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, तो ऐसा आपको बहुत बुक्स में नजर आएगा, बट बोर्ड एकदम क्लियर रहता है इन सब बातों पे।
समझ में आ गई बात? So children understood how did we get this 90,000? पक्का? चलिए, let's connect again and continue with the investing activities followed by financing activities. Let's connect again, children.